ਆਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੱਢੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 35 ਅਧਿਆਇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 35 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੀ 3 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਆਊ, ਆਪ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਤਕੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਮਕਾਨ ਕੋਠਾ ਵਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਜੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਲਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਹਿਲਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਵੇ ਕਾਕਾ ਗੋਡਾ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਾਗੇ। ਕਈ ਅਜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? 2 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਾਲਾ ਕਰਨੋਂ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਕੀ ਕਰ ਲਏ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਲਿਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਆ? ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵਾ ਇਹ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਕਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੀ ਘਟਦਾ ਹੈ? ਮਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਘਟਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਡਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ? ਕੌਣ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ? ਕੌਣ ਆ ਰੱਬ ਸਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਇੱਕ, ਪਰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੌਣ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਯਾਰ ਕਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੱਥ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਾਲ ਵਾ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਜੇ ਮਰੀਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਸਮਝੀ ਉਨੀ ਕਾ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮਤ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਮਤ ਦੇਖੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਦਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰ ਮੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨया ਉਜਾਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੂੰਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 4 ਬੂੰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਐ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਉਜਾਲੇ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਕਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨੇ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਮੋਟਾ। ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਿਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਇਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਕਲਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਦਿਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆ ਤੂੰ ਦਿਖਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਝਿਮਣੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਡਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਸਾਡਾ ਚਰਚ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਿਖਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਐਤਵਾਰ। ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣੀ ਕਿੱਥੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਿੱਥੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਰ ਟਾਈਟ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਖੁਰਪਾ ਫੇਰਨ ਹੁੰਦੇ ਚੌਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਢਿੱਲੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬੰਦਗੀ ਤੇ। ਚੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ यहाँ पे ये काम नहीं चलते। बोलो हालेलुया। ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜੇ ਕੋਈ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਭਲਾ? ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਭੇਟਾਂ ਦਸਵੰਧ ਮਰੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਹੈ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਟ ਚਲਾਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਖੇਚਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਉਂਗਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਰੇੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਘਮਾਣ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਚਾਬੀ ਦਿਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਲਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਘਰ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਬੰਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਖੋਲ ਖਾਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਲੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਤਾ ਹੋਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਲ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੱਗ ਹੈਗੇ। तो ऐसे इंसान किदां परमेश्वर दे कोलों बरकत पा सकते? परमेश्वर सानू कहंदा है पहली गल किन्हां नूं तकड़े करो, अपने ढिले हत्थां नूं तकड़े करो। हथ ढिले करन दा मतलब इंसान अपना हथ उदों ढिला करदा वा जदों ओदी जिंदगी च पाप हुंदा है, ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਆਲਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੜੀਆਂ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਆ? ऐदा नहीं उठाने। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तू देख रहे हैं। हालेलुया, ऐदा हाथ उठाने, उठाओ फिर। हालेलुया, कई कहता हालेलुया इत्थे ऐदा हुंदा ना, पास्टर कहंदा हालेलुया कर दे। हालेलुया हालेलुया। साडे डैडी एक कहानी सुणाउंदे हुंदे सी। कहते इदा वावा हड़ आ गया तो सब कुछ रुड़िया जाए तो इदा पार लंघण दे दरिया तो भी परले पासे माहौल ठीक आ, तो मझ की पूछ फड़ के लंघण दे ही पार दरिया चो। तो घर दोवां जियां दी पहलां थोड़ी बहुती तू तू मैं होई ही। तो घर वाला घर वाली नूं किते कहंदा पूछ घुट के फड़ के रखी, छड्ड ना दई, होर ना किते रुड़ जी। आले छड़ती हो की हो जू, तो रुड़ के हो गई, मर गई। ढिले हथ बहुत ज्यादा नुकसान हुंदे ने। इसलिए अपने हत्थां नूं दुनियावी तौर पर भी तकड़िया करना है और रूहानी तौर पर भी की करना। देखो तुसीं देखणगा कई लोग इन्ने अपने हत्थां नूं मजबूत कर लेंदे। मैं देखिया इदां 2 उंगलियां दे उत्ते वो अपने सारे शरीर का बैलेंस जिहड़ा वा खड़ा कर लेंदे, यानी कि वो अपने हत्थां नूं इन्ना स्ट्रोंग कर लेंदे। देखो ब्रूसली जो मार्शल आर्ट सी दुनिया का मन्निया परमन्निया, कहते वो पत्थर दियां कंधां तक पाड़ दिंदा सी अपने हत्थां दे नाल। उहदी प्रैक्टिस इन्नी ज़्यादा हो गई सी। प्यारिओ आपने हत्थां नूं अपणिआं नूं खुदा दे कम्मां दे लई तकड़िया करना है, प्रार्थना करन दे लई, हथ जोड़न दे लई, हथ उठाउण दे लई। फिर लिखिआ हिलदे गोडिआं नूं भी की करो? मजबूत करो। जिद्दां कई एक गीत ही गा के बह जांदे आ, कई 2 गीतां च बह, मतलब कईयां दे थोड़े गोडे मजबूत, कईयां दे बहुते मजबूत, ते इदां कईयां दे
थोड़े कमज़ोर, कईयां दे होर थोड़े कमज़ोर, तो कईयां दे ते इन्ने कमज़ोर हुंदे हो उन्हां 10 वारी कहीदा खड़े हो जाओ। कई बार वलंटीयर भी कहते हैं भैन खड़ी हो जा, पास्टर ने क्या खड़ी हो जाने। तो कलाम कहता वा कि अपने हिलदे गोडियां नूं भी की करो मजबूत। इहदा मतलब खुदा ये सानू कह रहा तो असी करना है। हालेलुया। किन्ने करना है? तुसी बाइबल नूं शुरू तो लैके आखिर तक पढ़ लो। जिहड़े काम इंसान कर सकता परमेश्वर वो इंसान कोलों ही करवाउंदा रहा। जिहड़े काम इंसान दे वस चों बाहर परमेश्वर आप करदा सी। बोलो हालेलुया। फिर लिखा धड़कदे दिल वालियां नूं आखो की हो जो तकड़े होवो ना डरो। कईयां दा दिल ही एडा कमजोर हुंदा ना, छेती ना हाय 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 चल बह ही जाना, बड़ी गर्मी है, पता नहीं बंदगी कदों खत्म होनी है। सियालों च कई ठंड बड़ी लगती है, ठंड बड़ी है, हाय हाय थल्लियों भी ठर गए हुण ते। ठंड बड़ी लगती सियालों च, गर्मियों च गर्मी बड़ी लगती है। मसले बहाने ही है, मतलब जिंदगी इहो जी। अजीजो साडा परमेश्वर कहंदा ना दिने सूरज तेनू सतावेगा ते ना राती चंद्रमा। कि ये उदा ही लिख छड़िया वा? उदा नहीं लिख छड़िया, ये सच वा। ये पर सच उन्हां दी जिंदगी च हुंदा वा जिहड़े सच नू ग्रहण कर लैंदे आ। बोलो सारे हालेलुया। दिने सूरज ना तैनू सतावे ते राती चन्न भी ना कुछ दुख पहुंचावे। ये भला किहड़ी गल वा? दिने विचारा अपनियां भेडां नूं सूरज तो बचाउंदा ही, रात नूं राखी करदा ही जाग जाग के, ते जिदन चंद्रमे दी लो हुंदी उहनूं फिकर रहिंदा ही भी दूरों ही शेर नूं पता लगना इत्थे पिया मेरा लेला उत्थे पिया। खुदा ने ना सारे कामां तो आजाद करके इसराइल दा बादशाह बना दिता। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर दे वल देखो, अपना ध्यान परमेश्वर दे वल करो। तुसीं दसो दाऊद ने किन्नियां डिग्रियां कीतियां सी, किन्ना पढ़िया लिखिया सी, उन्हें तुच्छ समझिया जाता सी। जद सैमुअल जस्सी दे मुंडियां नूं मसा करन दे लई आया, राजा एक नूं ही मसा करना सी, तो बाप ने जरूरी नहीं समझिया दाऊद नूं सदना। दाऊद नूं उदों सद्दिया जदों 7 दे 7 नूं खुदा ने रिजेक्ट कर दिता। एक गल याद रखो, कई कहते जी असीं इंटरव्यू देण चले हाँ, उत्थे ते 1500-1600 बंदा होना ते उन्हां 100 जने रखने, कई कहते 2 रखने, एक भावें एक रखना होवे। अगर तू अपने परमेश्वर दे नाल वफादार है ना, उन्हां 7 नूं वारों वारी अगे लिआंदा, पर खुदा पहलां तो ही चुन चुका सी दाऊद नूं। बोलो हालेलुया। क्योंकि दाऊद दे हत्थ कदे ढिले नहीं पे। की कहता, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे आओ खुदावंद दे घर चलीए। कई बारी आप कई कहते हैं बंदगी शुरू हो गई चलीए, वेने आ क्यों कहते भला वेने आ? क्योंकि कोई खुशी नहीं मन च भी बंदगी शुरू हुई, कोई आनंद ही नहीं मन च भी बंदगी ते जाना। आप कई तो मैं कईयां दा हाल वेखण दे, कईयां दे विआह करके फ्यूज ही उड गए हैं। वो बस इदां चलन दिया काम, इदां घर वाला बंदगी ते जाना, जनानी कहती इशारा ही करदी है बह जा, बस उत्थे ही बह, पुछना भी नहीं है। घर वाले की हिम्मत नहीं इन्नी हैगी भी पुछ सके क्यों नहीं जाना। मैं कई बार देखा फिर कहना चलिए बंदगी ते बड़ी फुर्ती, हाँ बड़ा आनंद जिंदगी, तैयार बस घरों तैयार हो गया, घर तैयार हो गया, मुड़िया ही नहीं, फोन किया वो यार आया नहीं तुम हो आओ। क्योंकि जो तेनू हत्थां नूं तगड़े करना चाहिए सी, तू अपने हत्थां नूं तो की रखिया, ढिलियां रखिया। मैं दाऊद बादशाह की गल कर रहा। दाऊद जो खुदा दे अगे नचदा, लुड्डी पाउंदा शदाइयां रगू, ओदी वाइफ मीकल ने उन्होंने तुच्छ जानिया। दाऊद ने परवाह की ओदी? बोलो कोई परवाह नहीं की ओदी।
आपने यस्सू दे वाल तकना है। बोलो हालेलुया। मैं नहीं कहना अपनी वाइफ के खिलाफ हो जाओ, अपने हसबैंड के खिलाफ हो जाओ, बस अपने हाथ तगड़े कर लो। हालेलुया। कई बार आप गीत बोलन देने, घुटने टिका कर हाथ उठा कर, ना तो कई ने गोडे टेके होंगे तो ना हाथ उठाए होंगे, तो बोली जाते नाल। नहीं मेरे प्यारिओ, जो आप परमेश्वर के वाल वेखोगे तो परमेश्वर 5 आयत दे विच कहंदा है, अन्ने दी अखां की हो जाणगियां, सुजाखियां हो जाणगियां, बोलियां दे कंन खुल जाणगे, तद लंगा हिरन वांगू चौंकड़ियां भरेगा, गुंगे दी जबान जयकारा गजावेगी, क्यों जो उजाड़ विच पानी अते रड़े मैदान विच नदियां फुट निकलणगियां। जोर से बोलो हालेलुया। भावें 100 बंदा अगे खड़ा होवे, उन्हां दा पहला नंबर लगा होवे, तेरा सब तो मगर लगे, खुदा ने तेन चुनिया, तेरा नंबर लगेगा जरूर, भावें बाद च लगे। बोलो हालेलुया। दाऊद दा कदों लगा सी? सारियां तो बाद च, पर चुनिया हो ही गया। इस गल की ना परवाह करया करो। इन्ने जने इंटरव्यू देन आए हैं, हाय मेरा की होगा। कई बार सलाह दी ना फलाना काम कर, पास जी काम तो बड़े जने कर, तेनों इन्ने नाल की बड़े जने करते। परमेश्वर कहता है वो मर्द मुबारक है जिहड़ा यहोवा दे ते की करदा, भरोसा करदा है। आपने परमेश्वर उत्ते भरोसा करना है। मैं दस रहा 3 काम करने हैं। हत्थां नूं की करना? तकड़ियां। गोडियां नूं की करना? मजबूत। अपने दिल नूं की करना? तकड़े करना। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अज कई लोग परमेश्वर च चलते आ पर उन्हां दा दिल बड़ा थोड़ा वा। माड़ी जी दुख वाली गल सुनगे तो रो पैणगे, माड़ी जी परेशानी वाली गल दिल भर आऊगा, क्योंकि दिल की आ थोड़ा वा। लिखा तड़क दे दिल वालियां नूं आखो, किन्हां नूं? तड़क दे दिल वालियां नूं। इन्ने कु उच्चे थां तो ही ना, इन्ने कु थां तो ही थां नूं छाल मारी ते हाय 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 मैं ते डर गई है। इन्ना की दिल हुंदा कईयां दा। कई बारी इदां खलोते, किसी ने उधरों कुत्ते नूं डराया, कुत्ता अपनी जान बचाउंदा किते लत्तां दे विचों दी लंघ ना, की होया? कुत्ता लंघ गया। वो बेचारा ओहदा अपना दिल धड़कन दिया, वो अपनी जान बचाउण दिया। कई मैं वेख्या कि कहते पास जी दुआ करो, जो दुआ करी दियां आवाज़ां पैंदियां, वो शुक्र करो तुहानूं आवाज़ां पैंदियां। कहते चैक भी कर लिया करो ना भी कौन मारन दिया आवाज़। अपने पास्टर ने आके सलाह करी दी हुई दी है। जिवें सैमुअल नूं जदों आवाज़ पई, नੱਠ के किहदे कोल आया? एली जाजक कोल आया। कहंदा तुसीं मैनूं सद्दिया? कहंदा नहीं पुत्तरा मैं नहीं तैनूं सद्दिया। किन्नी वारी होया? ना 3 वारी होया। तीजी वारी जदों आया फिर सैमुअल नूं एली जाजक ने समझाया, वो समझ गया कि कौन इहदे नाल गल करनी चाहुंदा? परमेश्वर। कई कहंदे जी चंगे भले दुआ करके सुते ही सानूं आवाज़ पै गई। आवाज़ भावें परमेश्वर ने मारी होवे ते कही जाणगे चल शैताना तैनूं अग लग जाए, चल शैताना तैनूं अग लग जाए। क्यों? क्योंकि दिल धड़कदा। हालेलुया। क्योंकि दिल घटदा। परमेश्वर की आवाज़ भी डराउणी हुंदी आ, क्योंकि लिखिया जो करनेलियस ने भी दूत नूं वेख्या तो की हो गया? डर गया। कई वेख्या ना, कई जो पाक नूं भी पहली बारी मिलता उन्हां दीयां चीकां निकल जांदियां ते कई समझदे कदे बदरू ही आ गई। फिर इहदे च मरीम ने भी जो दूत नूं वेख्या तो भी की हो गई? डर गई। हाँ, जिहड़ा चांस पहले हुंदा डर लगदा, पर चैक भी कर लिया करो कौन आया वा। रोज दुआ करते सी यस्सुआ यस्सुआ यस्सुआ, कित्थे आ तू? आ। तो जिद्दरों आ गया उधर चल शैतान तेनूं अग लगी। पास्टर फोन लाओ, पास्टर नूं आवाज़ां पैण दियां। पास्टर जी आवाज़ां पैण दियां जे। दिल ही इन्ना थोड़ा कर लिया कि हुण परमेश्वर की आवाज़ भी शैतान की आवाज़ लगदी, क्योंकि आत्मिक लैवल सही नहीं हैगा, आत्मिकता सही नहीं हैगी। प्यारिओ, जदों आपां प्रभु दी वल देखांगे, अपने इन्हां 3 हथियारां नूं मजबूत करांगे, परमेश्वर तुहाडीआं अखां नूं सजाखा कर देगा। तुहानूं घट सुणदा, कईआं नूं परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुणदी। अगर दुनियावी तौर पर कंन बंद हो भी परमेश्वर दुनियावी तौर पर भी चंगा करता है और
रूहानी तौर पर भी लिखा ना। यसु मसीह देखो सीधी सीधा कहता है। कई एक दिन मैंने एक नौजवान कहता, पास्टर जी तो सीधा ही लिखा भी सीधा ही यसु मसीह कहन दिया भी मैं फड़ाया जाऊँगा तो तीजे दिन फिर जी उठते चेलियां नूं समझ क्यों नहीं आउंदा। कहता मैनू तो आई जान दिया। मैं क्या 2000 साल हो गए कलाम सुनाते हैं, तेनों तो होना ही है समझ। उन्होंने तो पहली बारी सुनी ये गल। तो मैं गाड़ी लिखा भी यसु मसीह ने जी उठन तो बाद उन्होंने उत्ते की मारी, फूक मारी। तो लिखा उन्होंने बुद्ध नूं की कर दिता, खोल दिता ताकि धर्म ग्रंथां नूं की करन समझ सकन। एक कलाम इदां ही थोड़ा समझ आ जाता है, उहदे लई पाक रूह दा बपतिस्मा लेना पैंदा है। बोलो सारे हालेलुया। उन्हें देखो गुजरे दिन मैं कलाम सुनाया सी, अज भी तुहानूं दस दिना। मैं कलाम सुनाया भी विआह हुंदा वा ते विआह तो बाद कहंदे अजे 2-4 साल निआणा नहीं करना है, अजे अजे असीं अपनी लाइफ इंजॉय करनी। तो मैं क्या भी पहला आप नहीं करते तो मुड़ के परमेश्वर नहीं होने दिंदा, परमेश्वर ढक्कन ला दिंदा। तो कईयां ने ढक्कन का मुद्दा बना लिया। अपने च तो हिम्मत नहीं हैगी इदा प्रचार करने की खुल के। बोलो हालेलुया। कई मेरे भैन भरा दसदे रहे, कहते जे अपने पास्टर खाना लंगर खा लो, खा लो खा लो, फिर की संगत ने लाया, संगत च वरताता और च बुरा की खा लो कोई गल नहीं। हुण इधर तो प्रोग्राम इदां दा भी सानूं कोई पुछदा ही कहना नहीं खाना, नहीं थोड़ा बहुत भी नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खाना, हाथ भी नहीं लाउणा, चखना भी नहीं। बोलो सारे हालेलुया। वो किसी ने थोड़ा जिहा कट पीस जगदीश नूं पाया, जगदीश ने मैनूं पाता, मैं मैं होर खिलार दे। कई लोग जदों तुसीं खुल के खुदा दा काम करदे तुहानूं बदनाम करने की कोशिश करदे। ਇਹ जी कलीसिया में बीबियां भी बैठिया होंदियां वा, औरतां भी बैठिया होंदियां, इहो जिहियां गल्लां नहीं कहणियां चाहीदियां। नहीं घर जदों तुसीं बह के मावां भैणां दियां गालां कढदे ठा ठा, उदों तुहाडीआं बुढ़ियां घर च कित्थे होंदियां? कि उदों पहिलां उन्हां नूं खुड्डे च ताड़ दिंदे ते फिर गालां कढदे जे। और उहदे मੱਝ दी धार चोण लग्गिआ भी मੱਝ नूं साली बना लैंदे कई। ਇਹਦਾ मतलब तेरी वहुटी भी की है मੱਝ। मैं गाल नहीं कड्डी, साली घर वाली की जी भैन होंगी वो रिश्ते की लगती आ, साली लगती है। तो कई मੱਝ ने रिश्ता बना लेंगे, कई ने झोटा रखा होंगे पट्ठे पुट्ठे लियाउण लई, उहदे नाल भी रिश्ता बना लेंगे कई। उदों नहीं शर्म आउंदी भी मतलब साडे घर दे विच मावां वां भैणां वां धीआं वां। एक परिवार दे विच मैं गया, काफ़ी पुरानी गल है, मैं गया तो उन्होंने बेटी 16-17 साल की मंजी ते बैठी सब्जी कट्टण दी। तो गीत कोई पंजाबी वजन दिया, तो घर च भी वो कली गीत कोई पंजाबी वजन दिया भी जे तेरा माँ प्यो ना मन्निया तेन लै भजा के लै जू मैं इदा का कोई गाना वजन दिया। तो चलो कुड़ी ने मैनू वेख्या तो वेख के गीत बंद कर दिता। तो मैं क्या भी नहीं नहीं चलता रहन दे। मैं क्या कित्थे गए घर वाले? कहंदे आ हुणे वीर आ गया, बाहर आ गया, भरा आ गया। मैनू क्या, मैं जा जरा गीत ला के आई। उच्चा गए, मैं ला गया, लै मैं क्या भी की ट्रेनिंग देन दे जे कुड़ी अपनी नूं? कहंदे नहीं नहीं तो मैं लाया सी। मैं आप तू ला के घरों बाहर चल गया, ते अपनी जवान कुड़ी नूं तुसीं सुणाउण दे गीत नूं ट्रेनिंग देण दे भी इदां करिया कर। बाइबल दे विच लिखिया कि लोग अपनियां कन्नां दी जलूण दे कारण, कादे कारण? कन्नां दी जलूण दा मतलब समझदे जे? कन्नां दे विच सच दी आवाज़ सुननी पसंद नहीं। ये पास्टर बड़ा सख्त बोलदा, कोई होर फड़ो। उन्होंने थोड़ा चिर वेख्या, कोई होर फड़ो। यानी कि पास्टर किहड़े दे लभदे ने? अपने मतलब वाले। कई कहंदे पास्टर साडे वर्गा होना चाहिए, साडे नाल बैठ के गलासी लावे, साडे वर्गे चुगली निंदिया करे। प्यारिओ एक गल याद रखो, आप परमेश्वर दीयां आग्यावां तो भज नहीं सकते।
आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं जे जी सकते। तुसीं दसो, जो असीं अपनी मर्जी के मुताबिक जीने तो असीं प्रॉब्लम दे विच फसदे। आप निकालो व्यवस्था सार उहदा 6 अध्याय, कलाम च लिखा जो कोई गल करे तो किहदे अनुसार करे, बाणियां दे अनुसार। अपना ही तर्क रखना। वो मैं ना एक बारी सवाल कर दिता, एक साडे पास्टर नूं फॉरन तो आए सी, मैं कहा पास्टर नूं सैकंड मैरिज करनी चाहिए है अगर उसकी वाइफ की डैथ हो जाए? वो पास्टर ने कहा नहीं। वो मीटिंग खत्म होने तो बाद काफ़ी पास्टर मेरे दिवाले हो गए, कईयां दा दूजा विआह ही, कईयां दा तीजा, कईयां दा चौथा। मैनू कहते तुहानू की पता पास्टरां दी की मजबूरी हुंदी, किन्ने दुख सहने पैंदे। ते मैं तुहानू नहीं पता यीशु मसीह ने साडे लई किन्ने दुख सहे। बाइबल दे विच लिखिया सेवक इक्के पत्नी दा की होवे, पति होवे। तो कहंदे आहो भी असीं इक्को दे ही हां, हुण ते इक्को दे ही हां। इहदा मतलब ये थोड़ा भी रोज ही बदली जाओ, पुरानी छड्डी जाओ। व्यवस्था सार दा 6 अध्याय दी पहली आयत लिखिया ये वो हुक्मनामा विधियां अते कानून हन जिन्हां दा सिखालण दा हुक्म यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानू दिंदा है। देखो वचन दे विच हुक्म ने, वचन दे विच विधियां ने, वचन दे विच की आ कानून है। बोलो सारे हालेलुया, हालेलुया। सुनो उत्पत्ति की किताब दा पहला अध्याय, कईयां ने सवाल घल्ले सी, उन्हां दा जवाब मैं देना चाहुंदा ने वचन दे द्वारा ही। उत्पत्ति दा पहला अध्याय उहदी 26 आयत च लिखिया तां परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाईए। आदमी नूं जदों परमेश्वर ने बनाया किहदे स्वरूप ते बनाया? अपने स्वरूप ते बनाया। सुनो हुण 28 आयत दे विच लिखिया, कई कहंदे नहीं जी आ बरकत आ बरकत है। जो बाइबल दे विच लिखिया बाइबल दे विच लिखिया वही सच है, तुहाडा तर्क नहीं सच हो सकता। 28 आयत लिखिया परमेश्वर ने उन्हां नूं आशीष दित्ती। हालेलुया। 28 आयत दे विच की लिखिया? की दित्ती परमेश्वर ने उन्हां नूं? बनाउण तो बाद की दित्ती खुदा ने उन्हां नूं? यानी कि बरकत दित्ती। की बरकत दित्ती? परमेश्वर ने उन्हां नूं आख्या फलो और वधो ते धरती नूं भर दिओ। हालेलुया यार, हालेलुया ते जोर दी बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। बनाउण तो बाद खुदा ने की दित्ती उन्हां नूं? बरकत दित्ती के फलो वधो ते धरती नूं। ये थोड़ा परमेश्वर ने कहा है विआह कर लो ते हुण पहला सैट हो जाओ। वो सैट पहला होईदा वा, विआह होने तो बाद नहीं कोई भी सैटिंग शूटिंग हुंदी। फिर तो नक नुकी पूंजे जांदे न्याणियां दे। सैटिंग पहला करो अपने कारोबार दी, अपने बिजनेस दी, अपने कारोबार दी सैटिंग करो, अपनी फैमिली दी सैट, जो भी सब कुछ हैगा घर सैट करो, फिर शादी करो। नहीं तो विआह करन तो बाद जिहड़ी सीधी जी गल है, जे हुण ये भी गल कईयां ने कहना पुट्ठी आ, जे तुहानूं न्याणे जम्मण तो डर आउंदा ते विआह कीता ही कद लई? परमेश्वर ने पहली बरकत दित्ती इंसान नूं। वधना है ते की करना है? फलना है। मुड़के जो गोडे टेक टेक दुआ कराउंदे आ, कदी लैन च लाउंदे। अज ना फलानी जगह पास्टर ने ना ले हैंड प्रेइंग करनी, आपां ना उत्थे कार्ड बनाया, तू ले हैंड करा ला भावें डे हैंड करा ला, जो मर्जी कराई जा। लिखिया लीआ दी कुख नूं किन्ने बंद कर दिता सी? परमेश्वर ने। ते खोलिया भी किन्ने? ते खोलिया कदों भला? जदों लीहा की कीती गई? घनौणी गिणी गई। ते लीहा किहदे अगे गई भला? परमेश्वर दे अगे। एक मैनू कहंदा मैं ते आप ही खुदा अगे दुआ करती, खुदा बंदा 5 साल हुण कुछ ना करनी। ते मैं पहला किन्ने बच्चे? अजे कोई नहीं कहंदा। नहीं अजे तू 5 साल लाउणी अपनी लाइफ सैट करन दे लई, ते 5 साल तू विआह ही ना करदा। जो इंटरकोर्स खुदा ने बनाया है वाइफ और हसबैंड दा, वो बच्चों के लिए बनाया है। जोर से बोलो हालेलुया। इंजॉयमेंट लिए नहीं बनाया, वो बदी आ, वो पाप आ। बोलो हालेलुया। ते कईयां नूं ये गल्लां तो बड़ियां मिर्चां लड़दियां ते बाहरों बाहरों की कहंदे भैन जे एमसी दी है, ते अंदरों कहंदे भैन दा नंबर मिल जे हां किते।
शुरू शुरू च मैसेज हुंदा वा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, फिर सीधा ही हुंदा मान लो जे इत्थे किदा नाम पिंकी होवे गुस्सा ना करियो, फिर सीधा कहना पिंकी प्रेज द लॉर्ड, फिर पता नहीं की पिंकी सिंकी की होना, फिर हौली हौली इंसान पाप च डिगदा। और पाप की मजदूरी की है, इसलिए लिखा ढिले हत्थां नूं की करो, बोलो बोलो ढिले हत्थां नूं की करो, तगड़ियां करो खुदा दे काम दे वास्ते, अपनियां प्लैनिंगां बनाउण दे लई नहीं। वो बाइबल दे विच ते लिखिया आ कि तू जिस धरती दे उत्ते रहना परमेश्वर कहंदा उस धरती दे उत्ते तैनूं मैं ब्लैस करांगा। कि अमेरिका दे विच रहिंदा जिहड़ा परमेश्वर वो हो रहा, कि जिहड़ा इंग्लैंड आस्ट्रेलिया च परमेश्वर रहिंदा वो हो रहा। आप अपनी लाइफ की सैटिंग करदे जे, हाँ मैं फॉरन जावांगा, हैं मैं फलानी जगह जावांगा। याकूब कहंदा तुहानूं कहना चाहिए जे परमेश्वर चाहे ते, बोलो हालेलुया। कौन चाहे ते? परमेश्वर नूं ते आपां पुछदे ही नहीं। परमेश्वर नूं पता लोग कदों पुछदे जदों फास जांदे ना सारे पासे, फिर कहंदे पास्टर जी को दसो हाँ साडे बारे। पास्टर हुण की दसे, पहला पुछया ही पास्टर नूं। आप अपने दिल नूं तकड़ा करो, अपने हत्थां नूं तकड़िया करो, अपने गोडियां नूं तकड़िया करो। कुछ भी करन तो पहला गोडे टेको खुदा दे अगे, प्रार्थना करो, परमेश्वर दे कोलों पुछो परमेश्वर ये मैं करा कि ना करा। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर वा वो फैमिली दे विच इंटरस्टेड है। उन्हें की क्या भला, वो मर्द मुबारक है जिहड़ा यहोवा तो डरदा ते उहदे राहां ते चलदा। की लिखिया भला, ओहदी वहुटी की होएगी फलदार अंगूर दी बेल दी तरह। फलदार दा मतलब इहो ही है कि तेरी वहुटी जिहड़ी उस तो बच्चे होणगे, ते लिखिया बच्चे की होणगे तेरी मेज दे आले दुआले होणगे। असी जिहड़ी परमेश्वर ने विधियां, परमेश्वर ने जिहड़े कानून बनाए, जदों उन्हां दीयां धज्जियां उडाउने आ तो असी उस हक नूं गवा दिंने आ कि असी खुदा दे कोलों हत्थ अड्ड के मंगीए मुड़ के खुदावंदा सानूं बरकत दे। वो अधिकार तुहानूं तां वा जे तुसीं ओहदियां विधियां दे विच चलदे जे। बोलो सारे हालेलुया। जदों आप ओहदे हुक्मां दे विच चलदे जे, फिर आप दे कोल अधिकार आ कि आप परमेश्वर दे कोलों दावे नाल मंग सकदे जे। इसलिए कदे भी ढिले हत्थां नाल दुआ नहीं करनी, हथ चुक के दुआ करनी है। हथ थक गया हथ थले कर लो, साह लो फिर हथ चुक लो, खड़े होकर दुआ करो, तुर फिर के दुआ करो, बैठ के दुआ करो, लम्मे पै के दुआ करो। दुआ करो जरूर, तकड़े होकर दुआ करो। जोर से बोलो हालेलुया। आओ सारे से अपनी अखां बंद करांगे, अपने सिरां नूं खुदा दी हज़ूरी च झुकावांगे।